Welcome students. This is your BST class. This is your BST class. Today I am going to take some important questions or case studies on page number 13. This is your page number 13 and I am hoping you will learn first chapter for the point of view of your examination. The first question is management has to see that tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost. Management has to see that tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost. मैनेजमेंट देखे सोचिए कि उसका टास्क कंप्लीट हो जाए लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से और मिनिमम कॉस्ट पे. आइडेंटिफाई द टू रिलेटिव कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑप्शंस आर गिवन टू यू. कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, प्लानिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. आंसर इज efficiency and effectiveness. Clear? Second, successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called. Listen it very carefully. Successful organizations do not achieve their goals by chance. एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बाई चांस कुछ नहीं करती, बल्कि उन्हें डेलिब्रेट प्रोसेस लगातार स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है. किस प्रोसेस में? इफेक्टिवनेस में, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट. दिस इज डन ओनली बाय मैनेजमेंट. गुड मैनेजमेंट डज गुड वर्क. क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Limited received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days. Listen it very carefully. This is case study relating to effectiveness and efficiency. फेस्टिवल सीजन में ABC Limited को एक ऑर्डर रिसीव हुआ 10,000 मोबाइल फोन्स का, जो उन्हें 10 दिन में पूरा करना. फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड. अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया तो इसे वॉइड नहीं माना चाहिए. टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम. अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने आउटसोर्स का मतलब बाहर वालों से काम कराना, ठीक है, आउटसोर्स एजेंसी को इस्तेमाल किया ताकि ऑर्डर को टाइम पे पूरा किया जा सके. द आउटसोर्सिंग रिजल्ट इज इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%. आउटसोर्सिंग एजेंसी को यूज करने की वजह से 30% कॉस्ट बढ़ गई. क्वेश्चन इज गिवन टू यू. डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज effectively and efficiently? Here again listen the question. Do you think the production management performs duty effectively and efficiently? Answer is management has done effectively but not efficiently because cost is increased by 30%. Give 2 points of difference between effective and efficiency. Give 2 difference between effective and efficiency. Effectiveness. It refers to complete the task on time. It refers to complete the task on time. Efficiency. It refers to complete the task with minimum cost. Again listen the meaning. Effectiveness means completing the task on time. Efficiency means complete the task with minimum cost. Second difference is objective. Effectiveness, objective is to achieve end result. Clear? इसका objective है end result को achieve करना. Efficiency, to conduct cost benefit analysis, कि आपने cost को minimize करना. Third difference is given to you, main consideration. Doing द राइट टास्क, आपने काम को सही करना है. डूइंग द टास्क इन राइट वे, आपने सही तरीके से काम करना है ताकि काम निपट जाए. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. ABC Limited, a garment manufacturing company, set the target production of 100 garments per month
at the estimated cost of 200 per garment. एक ABC लिमिटेड कंपनी है जो गारमेंट मैन्युफैक्चर करती है, जिसने एक टारगेट सेट किया कि हमने 100 गारमेंट्स पूरे करने हैं पर मंथ के हिसाब से, जिसकी कॉस्ट 200 पर गारमेंट होगी. मोहन अ वर्कर वर्क डबल शिफ्ट. मोहन जिसने डबल शिफ्ट की and manufactured around 150 garments but at the estimate cost of 230 per garment. उसने 150 तो तैयार कर लिए, लेकिन उसकी कॉस्ट रही 230 per garment. On the other hand, Ravi, another worker, focused on the cost and handled resources very carefully. So he manufactured 90 garments but the estimated cost of 190 per garment. रवि एक और हमारा वर्कर जिसने फोकस किया कोस्ट पर और हैंडल किया बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को, लेकिन उसने 90 गारमेंट्स बनाए 190 की कॉस्ट पर. थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव टारगेट ऑफ 100 गारमेंट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट. थर्ड वर्कर ने दोनों के बीच में बैलेंस किया, कॉस्ट भी रिसोर्सेज भी, और उसने 200 गिवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे गिवन 100 गारमेंट्स को कंप्लीट कर दिया. आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोसेस्ड बाय रवि, मोहन एंड बट दे आर लैकिंग. आपको बताना है कि रवि और मोहन ने क्या काम किया और किस चीज़ को उन्होंने लैक किया. मोहन तो इफेक्टिव रहा और लैक ऑफ एफिशिएंसी रहा. क्यों? क्योंकि मोहन ने 150 गारमेंट तो बना लिए, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, तो इफेक्टिव तो हुआ लेकिन एफिशिएंसी कम हो गई. रवि जिसने 90 गारमेंट तो बनाए लेकिन कॉस्ट 190 हो गई, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ही इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. बट क्वालिटी इज पोसेस्ड बाय थर्ड वर्कर. थर्ड वर्कर की क्वालिटी क्या है? थर्ड वर्कर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रहा. थर्ड वर्कर इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट? कौन से वर्कर को प्रेफर किया मैनेजमेंट ने? थर्ड वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट. थर्ड वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट. आप रिवाइज करोगे 13 और 14 पेज पे किए हुए 30 क्वेश्चंस को क्लियर.